Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 5th of January 2025. So first of all, big rockets, a telescope and a big chance in space in 2025. सो स्पेस एम्बिशंस की यहाँ पे बात हो रही है। पहले हमने रीयूजेबल रॉकेट देखा, चॉपस्टिक मेथड, जो कि सक्सेसफुल हो पाया था। देन हमने देखा स्पेस टूरिज्म के अंदर एक्सप्लोरेशन, जिसमें मेजर रोल वाज प्लेड बाय ब्लू ओरिजिन, जो कि प्लान भी कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटर जैसे कि स्पेस एक्स, उनको चैलेंज करने का। न्यू ग्लेन की यहाँ पे बात हो रही है, विच एम्स टू reduce launch costs, which aims to carry payloads like national security satellites, moon landers, Mars orbiters, and it will also support Amazon's Project Kuiper satellite internet system. So basically, New Glenn is the reusable rocket by Amazon founder Jeff Bezos through Blue Origin. Then we are talking about Reuben Observatory's first flight, which is located in Chile. So dark energy, dark matter, इनको study करने के लिए it is important. It is using the world's largest digital camera. It aims to catalog the asteroids and comets, and it will help in predicting the potential of Earth. Then also moon exploration, robotic lunar missions, they are also planned. NASA is financing landers, Firefly Aerospace, and Intuitive Machines. There is also a NASA orbiter called Lunar Trailblazer, which will be studying the presence of water on the moon. So to we are moving forward with the question arising that how to make space tourism, space exploration a sustainable strategic pathway. So that is why the role of reusable rockets is also important, is increasing. India is also focusing on human space flights, Gaganyaan, for example, with astronauts Subhanshu Shukla, which is set to participate in a mission abroad, the ISS, that is International Space Station. So India is also looking forward to modernize and indigenize, increasing the participation of the private players in the space race. NASA Voyager 1 and Voyager 2 spacecraft, they become important to explore the interstellar space. They are maintaining communication. And Dream Chaser, न्यूट्रॉन रॉकेट, ये कुछ बेसिकली बोल सकते हैं नए स्पेस व्हीकल्स है जो कि अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग आर्कटिक वार्मिंग। सो आर्कटिक वार्मिंग जिससे रिलेटेड न्यूज में हमने देखा था इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एमॉक, एंटी मेरिडियोनल ओशन सर्कुलेटिंग करंट, जो पास करता है इन दी अटलांटिक ओशन, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे वार्मिंग हम देख रहे हैं इन दी आर्कटिक रीजन। तो की इश्यूज क्या हैं, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया, जैसे रसेल ग्लेशियर दैट इज डिसेंडिंग टुवर्ड्स अ लेक ऑफ इट्स ओन मेल्ट वाटर नियर ग्रीनलैंड। तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि दैट फायर्स इन द रीजन कुड आल्सो हैव अ मेजर इम्पैक्ट। इसके अलावा इश्यूज आ रहे हैं जैसे थॉइंग एंड पर्मा फ्रॉस्टिंग। जो आर्कटिक पर्मा फ्रॉस्ट है, इट वाज वंस अ कार्बन सिंक, बट नाउ इट इज ओनली emitting more carbon dioxide, which is indirectly basically increasing the global warming levels. So the Arctic tundra has also become a net source of carbon emission. There are worsening wildfires. Fire season in the Arctic are also becoming longer and more frequent. They're becoming bigger and hotter fires. Lightning strikes are increasing, which are also sometimes a source of wildfire due to climate change. Then melting sea ice is a major challenge in the eastern part of the Hudson Bay that was ice free a month earlier than usual in 2024. So ये दिखाता है कि how the climate temperature increasing temperature is impacting the unique aspects of Arctic region. Arctic is warming 4 times faster than the rest of the world. काफी ज्यादा abnormal warm conditions हैं ये, जो कि 11th year से persistent है। So ना कि सिर्फ geographical aspect में and
जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, रिसोर्सेज के एस्पेक्ट में, बट ऑल्सो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी उस रीजन के ऊपर देखा जा रहा है, जैसे कि द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. Russia and China, they are also asserting their influence on the region. Canada and US, they are also enhancing their presence in the region. So climate change के consequences भी हैं, geopolitical concern भी हैं. Arctic बोला जा रहा है कि it is potentially the Arctic will be ice free. Arctic will see ice free days as early as 2027. तो जो चेंजेस हैं आर्कटिक में वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, इन्वायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल एंड देन ऑल्सो उसके इकोनॉमिक implications भी होंगे on the global level. So India is also looking forward to ensure its space in the Arctic region, and it is promoting sustainable and judicious use of the resources. The next, new data protection rules. So parental consent, it is a challenge for big tech and under the new data protection rules. So digital personal data protection act जो कि मैंडेट करता है that social media platforms they must obtain a verifiable parental consent before onboarding the children below 18 years. So इस रूल को इंट्रोड्यूस तो किया गया, बट इसके सिग्निफिकेंट कंप्लायंस चैलेंजेस भी हैं. कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इन रियल लाइफ, जैसे कि वेरिफिकेशन कैसे करेंगे. तो प्लेटफॉर्म जो है उनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए सबसे पहले दी आइडेंटिटीज ऑफ द पेरेंट और द गार्डियन, जिसके थ्रू वो वैलिडेट कर पाए इन आइडेंटिटी प्रूफ्स को. कोलैबोरेशन करना चाहिए ट्रस्टफुल एंटिटीज के साथ, जैसे इंडिया के अंदर डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, जो कि वेरिफिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. देन ऑल्सो ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एडजस्टमेंट होना जरूरी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जरूरी होगा कि अपना डिस्टिंक्ट कंटेंट प्रोसेसेस वो मेंटेन करें अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे अडल्ट, माइनर या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए भी. तो इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो एंड इन द ऑपरेशनल डिलीजेंस ऑल्सो, जो कि काफी ज्यादा हेक्टिक हो सकता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फॉर मेजर सोशल मीडिया कंपनीज ऑल्सो. सो कंप्लायंस बर्डन उनके ऊपर बढ़ सकता है. This also requires the businesses to overhaul the existing data handling system and then आप उस पूरे डेटा सिस्टम को रिन्यू करें और उसमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को भी ऐड ऑन करें. तो हमने बेसिकली वेरिफिकेशन की बात तो की है यहाँ पे कि वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट होना चाहिए बिफोर ऑनबोर्डिंग चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ओल्ड. बट कैसे हम उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन हियर. एंड उसकी क्लैरिटी भी इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की गई है, दैट हाउ द चिल्ड्रन विल बी आइडेंटिफाइड फॉर द पेरेंटल कंसेंट एंड पोटेंशियल रिलायंस कैसे होगा, क्योंकि यूजुअली आपको ही इसमें भरना होता है कि टिक करना होता है कि अबव आई एम अबव 18 ईयर्स ओल्ड. तो आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो डिपेंडेंट रहते हैं ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, तो वो तो कोई गलत भी भर सकता है. सो हाउ विल वी मेक श्योर कि वो गलत नहीं भरा जा रहा है. एंड डेटा कलेक्शन को लेके भी कंसर्न उठ सकता है, क्योंकि प्रोसेसिंग करना पड़ेगा ऑफ द गार्जियंस डेटा, तो उसकी वजह से डेटा सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकता है. सो अकाउंटेबिलिटी इन सिक्योरिटी तो हम बढ़ाएंगे ही, बट डेटा एक्सप्लॉयटेशन एंड बर्डन ऑफ कंप्लायंस, alignment with the global standards become important. Then next is regarding रामचंद्र गुहा. उनकी बुक है जो कि हाईलाइट कर रही है द ओरिजिनल इन्वायरमेंटलिस्ट्स, जो कि हाईलाइट कर रही है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म by tracing the contribution of 10 key figures, जैसे कि के एम मुंशी, जे.सी. कोमारप्पा, राधा कमल मुखर्जी. तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जब इंडिया में स्टार्ट होता है तो बोला जाता है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जो है उसका बहुत मेजर रोल रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में. कैसे रीशेप किया गया इंडियन लैंडस्केप को, एक्सप्लॉइट किया गया अनजुडिशियसली रिसोर्सेस को, एंड उनको मैनेज भी नहीं किया गया. सो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ दादा भाई नावरोजी भी यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं. पायनरिंग इफेक्ट रहे, जैसे कि के एम मुंशी, उन्होंने इनिशिएट किया वन महोत्सव 1950 में, जिसको हम अभी भी सेलिब्रेट करते हैं ताकि फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर पाए.
जो जेसी कुमारप्पा थे, उन्होंने एडवोकेट किया फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर अभी इंक्रीजिंगली हमारा फोकस बढ़ता जा रहा है। सो इंडियन एनवायरमेंटलिज्म को बेसिकली पोर्ट्रे किया जाता है कि वो डीपली रूटेड है हमारे एथिकल, हमारे स्पिरिचुअल, कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर, इकोलॉजिकल ट्रेडिशंस के अंदर, जिसमें नेचर की हम पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल ट्री, जो कि ऑक्सीजन हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देता है, तो उसको हम वाटर करते हैं, जो कि हमारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन हमें बताते हैं। तो मॉडर्न चैलेंजेस को डील करने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारे कल्चरल रूट्स को हमें जोड़ना चाहिए विद द टेक्नोलॉजी। एंड कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज के टाइम पे हम डील करेंगे, वो एक मेजर मुद्दा उठता है कि स्कूल लेवल से ही हमें वन महोत्सव एंड ऐसे लीडर्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो हमारे रोल मॉडल बन पाए। देन वेलकम टू द जनरेशन बेटा। तो जनरेशन बेटा हम बोल रहे हैं babies who are born between 2025 to 2039. They will grow up in a highly integrated tech integrated era. तो एआई का इंटीग्रेशन होगा इनके बचपन से ही, इन डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेली लाइफ हमारी। डिफरेंट चैटबॉट्स जो कि कॉमन होते जा रहे हैं, जैसे गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी। सो टेक सेवी होंगी जेन बेटा। They will experience unprecedented connectivity. They will be learning through advanced tools, which will shape their values and also their behaviors. So, environmental concern भी उठता है कि Gen Beta will also face climate change. They will also face sustainability challenges. तो उसके साथ कैसे embrace करेंगे वो, and how they will move forward for a more eco-conscious lifestyle. Then next, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो एआई ट्रैकर की यहाँ पे बात हो रही है। एलएलएम की हमेशा हम बात करते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि एमएल एआई में यूज किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसएलएम्स, दैट इज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल। तो शिफ्ट देखा जा रहा है टू एसएलएम्स, विच इज वाई। क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा सबसे पहले, एंड आप और ज्यादा स्पेसिफिक टास्क करवा पाओगे। सो गॉड फादर ऑफ एआई यहाँ पे हाईलाइट किया गया, जियोफ्रे हिंटन, उन्होंने वार्निंग दिया दैट एग्जिस्टेंशियल रिस्क हैं दैट आर पोज्ड बाय एआई। तो जरूरत है कि हम एआई को रेगुलेट करें एंड हम प्रिवेंट करें उसका मिसयूज। जैसे कि डिफरेंट मेजर चैटबॉट्स भी आ रहे हैं, मेजर एआई के अंदर इनोवेशन भी हम देख रहे हैं, जिसमें राइवलरी भी आने लगी है बिटवीन जेमिनाई एंड ओपन एआई। जेमिनाई गूगल का है एंड ओपन एआई का जो मॉडल है वो compete करते हैं जी डेवलपिंग एडवांस्ड एआई टूल्स, जिससे आप मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। वैसे एक यूनिक एग्जांपल है कि एआई को हम कैसे महाकुंभ के अंदर यूज कर रहे हैं। सो एआई इनेबल्ड सिस्टम जैसे आरएफआईडी रिस्ट बैंड हम यूज कर रहे हैं, ऐप से कनेक्टेड है, ताकि मैनेज कर पाए महाकुंभ प्रिविलेज पिलग्रिमेज को। शोकेस करता है एआई का इंटीग्रेशन इन द कल्चरल एस्पेक्ट। इसके अलावा महाकुंभ जो जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी साइट। सो उसको भी हमने कनेक्ट किया है, बेसिकली क्यूआर कोड सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं। एआई पावर्ड चैटबॉट है इन 11 लैंग्वेजेस। मल्टीलिंगुअल डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कितना कन्वीनियंट हम अपने डे टू डे लाइफ एंड कल्चरल, इस लेवल के कल्चरल इवेंट को बना सकते हैं with the integration of AI also. Then next, women teachers are steadily overtaking men, which is driven by their growth in the private schools. So ये डेटा में दिखा रहा है कि जो विमेन है वो अभी जो स्कूल टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, दे कंप्राइज 53%। जैसा कि पहले देखा जा रहा है इन 2019 टू 20 50% था, अभी 53% हो गया है। तो 98 लाख टीचर्स हैं, जिसमें से 52.3 लाख फीमेल हैं। गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल में देखा गया शार्पर ग्रोथ था ऑफ द फीमेल टीचर्स। गवर्नमेंट स्कूल फिर भी बोला जा रहा है कि दे रिमेन मेल डोमिनेटेड इन सम स्टेट्स, बट सम स्टेट्स में हम देख रहे हैं कि फीमेल का रोल बढ़ रहा है।
हायर एजुकेशन गैप भी हाईलाइट किया गया कि जो विमेन है दे कॉन्स्टिट्यूट ओनली 43% ऑफ टीचर्स इन दी हायर एजुकेशन। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हायर एजुकेशन में नंबर कम है अभी भी फीमेल टीचर्स का। तो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन गैप है जो वो फेस करती हैं। इसके साथ स्टेट्स लाइक केरला, वहां पे 78% देखा गया, तमिलनाडु 67% देखा गया, विच लीड्स टू फीमेल टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, जो कि नेशनल जो एवरेज बैठता है, नेशनल ट्रेंड बैठता है, उससे अलग है। तो हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी कैसे एज अ स्किल इनहेंसर, एज अ टीचर, एज अ गुरु, फीमेल्स का रोल बढ़ते जा रहा है, एंड दे आर एजुकेटिंग मोर एंड मोर चिल्ड्रन, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर टू द education system of this country. Then next, on the Blinkit's 10-minute ambulance service. तो हमने देखा एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करेगा ब्लिंकिट, जो कि एक जोमेटो ओन्ड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। 10 मिनट्स के अंदर आपको एम्बुलेंस सर्विस मिलेगा विच विल बी इक्विप्ड विद बेसिक लाइफ सपोर्ट फीचर्स जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, एंड हर एम्बुलेंस के अंदर एक पैरामेडिक होगा, ट्रेन ड्राइवर होगा। कंपनी जो है वो ये भी एम्फसाइज करी है कि वो अफोर्डेबिलिटी पे फोकस कर रही है, एंड प्रॉफिट उनका गोल नहीं है यहाँ पे। तो अभी गुड़गांव में शुरू हुआ है, बट इट विल बी एक्सपेंडिंग इन डिफरेंट सिटीज ऑल्सो। सो क्वेश्चन उठता है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल तो बढ़ते जा रहा है इन दी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बट व्हाट अबाउट द रोल ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि यूजुअली ये प्राइमरी गोल होना चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्राइमरी रोल इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का ही आता है। बट अब जब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट रोल भी बढ़ते जा रहा है, तो ये दिखाता है कि एम्बुलेंस शॉर्टेज इंडिया के अंदर कितना है। टाइमली एक्सेस ही नहीं मिल पाता आपको हेल्थ केयर से, डेटा भी नहीं है हमारे पास, तो अर्जेंट डेटा भी होना चाहिए ताकि सबसे पहले हम हॉटस्पॉट्स को मैप कर पाए। यहाँ पे हॉटस्पॉट्स को मैप कर पाएंगे तभी हम बोल सकते हैं कि हम एम्बुलेंसेस पर पॉपुलेशन जो अवेलेबल है उनको इंक्रीज कर पाएंगे। रेगुलेटरी कंसर्न भी होता है कि प्राइवेट सेक्टर को हम इन हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स में बढ़ तो रहे हैं, बट क्या अडेरेंस हो पाएगा प्रॉपरली विद द गवर्नमेंट रूल्स, एंड क्या अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी इन द लॉन्गर टर्म? देन इंडिया का जो एम्बुलेंस सिस्टम है इट रेंजेस फ्रॉम बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस टू एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस, एंड जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेंसिव। सो जरूरी है इनके ऊपर फोकस करना, एंड जरूरी है कि हाउ टू मेक श्योर दैट private sector will be following the accountable governance measures also. So national ambulance service under national health mission becomes important. Provides advanced life support ambulances for a population ratio of 1 per lakh. So जो gap है in the ambulance coverage, it remains a significant challenge for India also, and that is why India needs more ambulances on the road. तो ब्लिंकिट के 10 मिनट एम्बुलेंस, सो हम देख सकते हैं इसमें कि देयर इज इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट उसके साथ साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस को मेक श्योर करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, लाइबिलिटी इन इमरजेंसीज में ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन करेंगे? सो अनइक्वल कवरेज भी हो सकता है, जैसे इनिशियली फोकस हम दिख रहे हैं कि अर्बन एरियाज पे ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द नीड्स ऑफ द रूरल एरिया? वहां पे भी तो एम्बुलेंस शॉर्टेज है जो कि और ज्यादा एक्यूट है। सो जो इक्विटी है उसको भी मेंटेन करना जरूरी है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द इबोला वायरस एंड इट्स रूट टू द स्किन सरफेस। सो रीसेंट स्टडीज में यहाँ पे यही रिवील किया गया दैट इबोला वायरस जो है इट कैन ऑल्सो ट्रावर्स द इनर एंड द आउटर स्किन लेयर्स इमर्जिंग ऑन द सरफेस। तो वायरस जो है ये डिफरेंट स्किन सेल टाइप्स को भी इन्फेक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफैगस, देन ऑल्सो केरेटेनोसाइट्स, जो कि वायरल ट्रांसमिशन को और ज्यादा बढ़ाता है। तो स्किन सरफेस पे भी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकता है, तो नई प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज की हमें जरूरत है यहाँ पे। देन व्हाई पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पॉलिसीज दे नीड प्रिसिशन? सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट GNT
जो कि सेट किए गए हैं बाय द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो वो एम करते हैं टू रिड्यूस स्टंटिंग बाय 40%, अनीमिया बाय 50% इन women, and then also 50% in women and child overweight by 2030। बट ये प्रोग्रेस स्लो रहा है, इम्प्रूवमेंट में इनसफिशिएंसी है, चैलेंजेस हैं इन एड्रेसिंग अनीमिया एंड स्टंटिंग देखा जा रहा है। अनीमिया का प्रेवलेंस कैसे होता है, जिस पर्सन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है, एंड फॉर ओनली 1/3 ऑफ द अनीमिया केसेस के लिए वो अकाउंट भी करता है। सो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है टू डाइवर्सिफाई द डाइटरी इंटरवेंशंस। जो स्टंटिंग है वो अर्ली स्टेज पे ही होती है इन दी लाइफ। तो 40% इंडियन चिल्ड्रन आर स्टंटेड बाय एज ऑफ 2। फीडिंग स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी होगी जो कि फेल कर रही है टू एड्रेस दिस क्रिटिकल चैलेंज। रिकमेंडेशन होना चाहिए फॉर पॉलिसी शिफ्ट, जैसे कि डाइट की हमने बात की। देन कैसे इन मेट्रिक्स को हम प्रिसाइज रखेंगे, कैसे मेजरमेंट टूल्स को भी और अच्छा बना पाएंगे ताकि एनीमिया एंड स्टंटिंग प्रेवलेंस जो बढ़ते जा रहा है उसमें हम इंटरवेंशन कर पाए। एंड कई बार ओवर न्यूट्रिशन का भी चैलेंज अराइज होता है कि कैसे अंडर न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक ओवर न्यूट्रिशन को हम बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो 50% of the underweight children they exhibit metabolic risk। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए पोषण अभियान बिकम्स इम्पोर्टेंट। उन्होंने भी गाइडलाइन दिया है कि न्यूट्रिशन डेंस डाइट होनी चाहिए फॉर द चिल्ड्रंस अंडर 3 years ऑफ एज। बट क्या इम्प्लीमेंटेशन उसका हो पा रहा है, वो क्वेश्चन उठता है। एंड कहीं ना कहीं एक डुअल चैलेंज है यहाँ पे जो फेस कर रहे हैं हम, अंडर न्यूट्रिशन का एंड ओवर न्यूट्रिशन का। तो क्या दोनों के लिए स्ट्रैटेजीज अलग नहीं होनी चाहिए एंड लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन कब हो रहा है, कैसे वो मेक श्योर करेंगे कि दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इट। तो न्यूट्रिशन जो है इट इज दी in the first 2 years of life it is very critical and it plays a major role in preventing stunting and also long term health risks। सो डुअल चैलेंज यहाँ पे बेसिकली आ रहा है फ्रॉम अंडर एंड फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन। देन रिसेंटली हमने देखा था बिहार के अंदर दीदी की लाइब्रेरीज, कैसे वहां पे 60% ऑफ द बेनिफिशियरीज वर गर्ल्स। दे वर प्रोवाइडिंग वाईफाई, दे वर प्रोवाइडिंग ई बुक्स। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार स्टूडेंट्स एंड देयर एस्पायरेशन फॉर आईआईटीज कैसे लोकल लाइब्रेरी सपोर्ट उसमें हेल्प कर रहे हैं। जैसे पटवा टोल गया डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स दे यूज लोकल लाइब्रेरीज कॉल्ड वृक्ष पाठशाला टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। सो लाइब्रेरी जो है वो फ्री बुक प्रोवाइड करती है उनको, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हैं, राउंड द क्लॉक वो ऑपरेट करते हैं। दे आर मेंटेन बाय द फॉर्मर स्टूडेंट्स एंड लोकल जो वॉलंटियर करते हैं। तो वो 1000 स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज दे हैव पास द इंजीनियरिंग एग्जाम। तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो 300 मेकिंग इट टू आईआईटी सिंस 1990s। तो सिग्निफिकेंट हेल्प हम देख सकते हैं कि दे आर हेल्पिंग द चिल्ड्रन टू एस्केप द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दे आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन डिस्पाइट द challenges like financial constraint which they face। So it becomes a powerful example of Vriksh Pathshala in Bihar। Then ministry proposes cruise terminal and also tourism, high-end tourism infrastructure in Greater Nicobar area. There will be shipbuilding, there will be repair facilities, exim port. So the project will include seeking 100 acres of land for shipbuilding and these repair facilities on the Greater Nicobar Island, high-end tourism infrastructure। बट इसके साथ साथ environmental concern उठता है regarding the clearance of trees। Will the compensatory afforestation will be practiced? How will we balance between the economic opportunities and the ecological security concern? That is also an important question here। We know that development is also important, but also ecological and environmental conservation is important। So how will we balance that? What will be the role of National Green Tribunal in it and the local authorities of Andaman and Nicobar? So next is regarding the allied sector
to the agriculture. It is growing to 3 to 4%. Why is it important? So the Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar, he also announced the similar data regarding agriculture and allied sector. So this is allied sector के अंदर हम focus कर रहे हैं to introduce newer opportunities for production and export, for improving the agricultural infrastructure, for addressing the challenges which are also being increasing due to climate change. So it is emphasizing on placing the technological adoption. We are also trying to integrate the digital agricultural and ensuring farmers for to have a better access to the markets. Recently, we also discussed regarding the government preparing a bill for unified agriculture ecosystem, which will act as a one-stop solution. We are also having eNAM portal. So, educational transformation, agricultural growth, it emphasizes on resilience and also innovation so as to sustain this growth despite facing global challenges. Then next PM, our Prime Minister also highlighted the critical role which villages will be having in realizing the dream of Viksit Bharat. So Gramin Bharat Mahotsav 2025. 1.5 lakh Ayushman Arogya Mandir. So PM Modi also emphasized on the importance of the rural India in building a prosperous and an ecosystem which supports these villages. How we will include, how we will be inculcate the role of villages in our goal of Viksit Bharat by 2047. So weakening social harmony, exploitation or due to caste related issues, that becomes a very sensitive challenge to the ecosystem of villages and the integration of them. So there are different challenges which first we should map, and then we should enhance the infrastructure for the rural sector. We should create self-reliant economies. We should foster innovation in the rural communities with a special focus on empowering the rural women who can play a critical role, a central role in the development. They can be the leaders in different initiatives like PM Awas Yojana, in which joint sharing of the houses also being putting forward. Then Swachh Bharat Mission, rural infrastructure project, they were also integrated in the village ecosystem. So this becomes an important example that how we are including villages via different initiatives like PM Awas Yojana, providing them safe, clean drinking water, Jal Jeevan Mission, Swachh Bharat Mission, Gramin Bharat Mahotsav, आयुष्मान आरोग्य मंदिर. सो ये हमारा फोकस एरिया है यहाँ पे. Then next is, can you spot the dark patterns? So what are dark patterns सबसे पहले तो, and कैसे जो apps हैं they use subtle tricks to make us spend more. So dark patterns जो हैं वो बोल सकते हैं deceptive design है, tactics हैं जिनको यूज किया जाता है by different websites या फिर apps ताकि users को manipulate किया जा सके in spending more money and sharing their more data. For example, forced continuity देखी जाती है, फ्री ट्रायल देखा जाता है, दैट ऑल्सो कन्वर्ट्स देम इनटू बीइंग पेड सब्सक्रिप्शंस विदाउट इवन वार्निंग. हार्ड टू एग्जिट, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है तो एग्जिट करना, कैंसिल करना सर्विस को डिफिकल्ट हो जाता है. देयर आर ऑल्सो हिडन फीस, फॉर एग्जाम्पल सरप्राइज चार्जेस जो कि रिवील होते हैं एट दी चेकआउट ओनली. इसके साथ बास्केट स्नीकिंग भी देखा जाता है, ऑटोमेटिकली कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड हो जाना या फिर कंसेंट नहीं लेना ऑफ द यूजर. तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं कि कैसे डार्क पैटर्न यूज करता है. नाउ इट विल ऑल्सो बी इम्पैक्टिंग द यूजर्स. फॉर एग्जाम्पल जो एक्सप्लॉयटेटिव साइकोलॉजिकल बेस बायसेस क्रिएट हो जाते हैं, दे ऑल्सो लीड टू इम्पल्सिव स्पेंडिंग, डेटा मिसयूज. इसके साथ साथ ऑफन मिसलीडिंग भी होता है, तो द कंज्यूमर ऑल्सो फील पावरलेस इन दीज ट्रांजैक्शन. So there is need for transparency in the dynamics of pricing and regulatory oversight on how to manage these manipulative practices, which are called the dark patterns for the consumers. Also, Indian Consumer Protection Act, it will play an important role यहाँ पे to protect the users, but it also requires stricter enforcement. उसका implementation होना जरूरी है. And जो राइज है डार्क पैटर्न्स का वो हम देखते जा रहे हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स
इन डिफरेंट एप्स, उनके यूएक्स यूआई डिजाइन में ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं जो कि इसको क्रिटिकली प्लान आउट करते हैं। तो ये दिखाते हैं कि कैसे डार्क पैटर्न का जो रोल है वो बढ़ते जा रहा है, एंड देयर इज नीड फॉर यूजर एजुकेशन ऑल्सो एंड फॉर स्ट्रॉन्गर रेगुलेशंस। Then Lakshadweep diverse, they discover a wreck of centuries old warship. So Kalpeni Island, this becomes important in the Lakshadweep region. It also found what appears to be a wreckage of a warship from 17th or 18th century, and bola ja raha hai that it likely belongs to one of the European powers. So it becomes a reflection of our history. The arrival of the European powers in India first was Portuguese, followed by different Dutch, French, British, also Danes. So it they also engaged in the maritime supremacy over the trade routes in the Indian Ocean, connecting the Middle East and also Sri Lanka. So अभी इमेज में भी हम देख सकते हैं कि कोरल ग्रोथ हो चुका है, कोरोजन हो चुका है। तो दो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस यहाँ पे जो कि कहीं ना कहीं डिफिकल्ट कर देता है whether the ship was entirely made of iron or was it made of wood. So divers प्लान करें to inform the local authorities and then further exploration and preservation की बात की जाएगी यहाँ पे। So important fact यहाँ पे हो जाता है कल्पेनी आइलैंड जो कि लक्षद्वीप आर्किपेलॉजी में लोकेटेड है। एंड लक्षद्वीप का मैरिटाइम हिस्ट्री भी ये दिखाता है कि कैसे एंशियंट ट्रेड रूट्स जो थे, पोर्तुगीज जो थे, दे वर अमंग द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स जिन्होंने अपना नेवल प्रेजेंस सेट किया था, एस्टैब्लिश किया था इन द इंडियन ओशन, फॉलोड बाय द डच, एंड उसके बाद हमने देखा ब्रिटिश। देन चाइना, इट इज हैविंग 2.5 times more million plus cities than India. So 65% of the Chinese population they live in urban areas, एंड इंडिया से कंपेयर करते हैं तो लेस देन 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बनाइज्ड रीजन्स। So China is having 162 cities with a population exceeding 1 million, compared to India, which is 65 cities. So despite having smaller population level as compared to India, जो चाइना है वहाँ पे 162 cities हम देख रहे हैं, इंडिया के अंदर 65 हैं। ग्लोबली देखते हैं तो 600 से ज्यादा 653 ऐसे सिटीज हैं ग्लोबली जहाँ पे मिलियन प्लस पॉपुलेशन देखी जाती है। यूएसए के अंदर यूएसए हैज 52 मिलियन प्लस सिटीज, ब्राजील हैज 23, मेक्सिको हैज 21। तो चाइना ये दिखाता है कि चाइना के अंदर कैसे रैपिड अर्बनाइजेशन भी हुआ है, विच इज ऑल्सो ड्रिवन बाय स्टेट लेड इनिशिएटिव्स। स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो इंडिया का जो अर्बनाइजेशन रेट है वो भी डिफरेंट है, इंडिया का जो अर्बनाइजेशन पैटर्न है वो भी डिफरेंट है, एंड कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट लाइंस पे है एज कम्पेयर टू चाइना। एंड हम कुछ लेसन्स भी ले सकते हैं कि कैसे प्लान्ड अर्बनाइजेशन हमें करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल कैसे बनाना है फॉर द पीपल। सो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड द एलाइड सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत हमें और ज्यादा है अदर देन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। जैसे हमने देखा कि एलाइड सेक्टर भी जो है वहां पे भी ग्रोथ बढ़ती जा रही है 3 to 4%। तो वो दिखाता है कि डाइवर्सिफाई हो रहा है एंड कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पैरिटीज भी हैं। Then India tells WHO that China must give timely updates for the respiratory illness outbreaks. So इंडिया ने पहले भी अपना विजिलेंस रेज किया है रिगार्डिंग द रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग रेस्पिरेटरी इलनेसेस इन चाइना, जो कि 5 years पहले भी हुआ था एंड अभी रिपीट हो रहा है। टू प्रोवाइड टाइमली अपडेट्स इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि चाइना अकाउंटेबल रहे, एंड WHO का रोल इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे अकाउंटेबल रखने में। रेस्पिरेटरी इलनेस चाइना के अंदर जैसे कि RSV, जिसको बोला जा रहा है रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस, HMPV दैट इज ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस। सो ये कॉमन पैथोजेंस हैं जो कि फ्लू सीजन में बढ़ जाते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरसेस से भी लिंक किया जा रहा है रीसेंट केसेस को। वीडियोस हम देख रहे हैं चाइनीज हॉस्पिटल्स की जो कि स्प्रेड हो रही है ऑनलाइन, जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू मैनेज द पेशेंट्स
एंड ऑल्सो ग्लोबल लेवल पे कंसर्न रेज करता है ये। तो जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप देखा गया, दैट इज चेयर्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो उन्होंने कन्वीन किया टू असेस द सिचुएशन एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस। सो इंडिया भी अपने प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहा है। डब्ल्यूएचओ से एक्सपर्ट जो हैं, एम्स से जो एक्सपर्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो एम्फसाइजिंग दैट जो फ्लू सीजन है इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन दी सर्ज ऑफ द केसेस, बट क्रिटिकल डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई फर्दर एनालिसिस करने के लिए। HMPV जो कि एक रेस्पिरेटरी वायरस है विच इज कॉजिंग फ्लू लाइक सिम्टम्स पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में, एल्डरली में। तो जो आउटब्रेक है चाइना के अंदर वो सीरियस है एंड हमारे लिए क्रिटिकल है कि WHO का जो रोल है इन कीपिंग द नेशंस अकाउंटेबल इवन इफ इट इज चाइना, तो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड कैसे कम्युनिकेशन वो मेंटेन करेंगे। देन नेक्स्ट, आर चिदम्बरम पायनरिंग फिगर है इंडिया के न्यूक्लियर और साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर। न्यूक्लियर टेस्ट जैसे स्माइलिंग बुद्धा जो कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था इन मई 1974, ऑपरेशन शक्ति 1998 के अंदर। तो उनका इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल सोर्स करने में भी इंडिजिनियसली फॉर दीज टेस्ट, जो कि एक स्पेशल फीचर बनाता है इन टेस्ट को। इसके साथ डायरेक्टर रह चुके हैं ऑफ बार्क, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। चेयरमैन रह चुके हैं ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देन ऑल्सो प्रिंसिपल रह चुके हैं ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रह चुके हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001 से लेके 2018 तक। सो हाई प्रेशर फिजिक्स, क्रिस्टेलोग्राफी, मटेरियल साइंस, इनके अंदर एडवांस रिसर्च उन्होंने की है। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है इंडिया का। इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट भी हो रहा है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्रिएट किया गया। सो इंडियन ओपेनहाइमर भी उनको बोला जाता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स। पद्मश्री एंड पद्म विभूषण वाज आल्सो अवॉर्डेड टू हिम। सो एक लेगेसी उन्होंने क्रिएट की फॉर साइंटिस्ट ऑल्सो इन दिस सिटी एंड एक रोल मॉडल है हम सभी के लिए। उनका जो वर्क है इंस्पायर करता है इन दी मटेरियल साइंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन इंडिया, एंड ही वाज अ की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो। देन नेक्स्ट, व्हाई इज रूपी वीकनिंग अगेंस्ट डॉलर। सो हमने देखा अ फॉल इन द डिमांड फॉर इंडियन करेंसी एंड इंक्रीज डिमांड फॉर US डॉलर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं बाय $20 बिलियन बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर 2024। सो मार्केट इंटरवेंशन भी हुआ है बाय द RBI। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसीज US के अंदर जो देखी जा रही हैं और ज्यादा टाइटन कर रहे हैं वो, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड बेसिकली जो डिमांड है ऑन दी रुपी वो रिड्यूस होते जा रहा है। सो इम्पोर्ट बिल का खर्चा बढ़ते जा रहा है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इंडिया के ऊपर इंक्रीज हो रहा है एंड साथ ही साथ वीकनिंग ऑफ रुपी हम देख रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। The cost of servicing the external debt, it also becomes more difficult. So long term measures की जरूरत है हमें, जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करना, डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट को रिड्यूस करना, अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करना। सो इम्पोर्टेंट $30 बिलियन के बीच में हमने देखा कि ड्रॉप हुआ इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देन इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग, इज इंडियाज फॉरेस्ट कवर ग्रोइंग इनफ। सो की फाइंडिंग आई है बाय SFR, दैट इज स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इट स्टैंड्स एट 25% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। सो मार्जिनल इंक्रीज है लास्ट ईयर से, बट क्या ये इनफ है? जो इंक्रीज देखा गया इन द फॉरेस्ट कवर इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड एरियाज जैसे कि मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका जहाँ पे हमने डिक्लाइन देखा, तो क्या ये इनफ है
ये क्वेश्चन उठता है। सेंसिटिव एरियाज के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया है। डिफरेंट एक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिनके थ्रू हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कवर्स की, फॉरेस्ट कवर की, जैसे वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द मॉडरेटली डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, जो कि डिक्रीज देखा गया है जिनके अंदर। नीलगिरीज फॉरेस्ट जो कि एक पार्ट है यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पे भी देखा गया कि जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में देख नीलगिरी फॉरेस्ट में हमने देखा कि डिक्रीज हुआ है, एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि 4-fold इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स ऑल्सो, जो कि एक मेजर रीजन है। तो ओपन फॉरेस्ट कैनोपी क्या होता है, 10 to 40% जब कैनोपी डेंसिटी होती है, जो कि एक्सपैंड हुआ है। बट वेरी डेंस फॉरेस्ट जैसे जिसमें हम बोलते हैं कि 70% कैनोपी डेंसिटी होती है, उसमें मिनिमल ग्रोथ हमने देखी है। तो ए फॉरेस्टेशन एफर्ट से दिखाता है कि इम्प्लीमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है, स्पेसिफिकली इन दी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया जैसे कि नीलगिरीज या वेस्टर्न घाट। तो इश्यूज हैं डिफोरेस्टेशन के, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन बोल सकते हैं, लैंड यूज पैटर्न्स में चेंजेस हैं, वो एक क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो कंपनसेटरी ये फॉरेस्टेशन करना भी जरूरी है जब हम ट्रीज को कंज्यूम करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स या फिर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स फॉर एनर्जी। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन जो हो रही है वो प्लान्ड एंड इन्फॉर्म्ड अर्बनाइजेशन होना चाहिए, लोकल अथॉरिटीज का कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड क्या रियल लाइफ चैलेंजेस हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड डिफरेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे देखा गया कि डेटा को भी कैसे यूज किया गया है बाय SFR, जिसमें सैटेलाइट डेटा को उन्होंने मिक्स किया है विद द नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। तो हम रिलाई कर सकते हैं ऐसे डेटा के ऊपर, एंड हमें क्लाइमेट मिटिगेशन स्टेप्स को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं ये फॉरेस्ट, एंड लाइफ लाइन है सोसाइटी की। देन व्हाई वाज नो डिटेंशन पॉलिसी वाज रोल्ड बैक। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था नो डिटेंशन पॉलिसी को, जो कि एम करता है टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स by promoting the students up to class 8 regardless of their performance। 2019 में देखा गया कि इसको रोल बैक किया गया था ड्यू टू डिक्लाइनिंग लर्निंग आउटकम्स एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखा गया था इन दी स्कूल्स। जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ 2020 में, वहां पे रिवील हुआ कि सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखे गए इन दी स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन लैंग्वेज एंड इन मैथमेटिक्स। With class 8 students, they were performing worse than the class 5th students। क्या स्टूडेंट्स को डिटेन करना एक सोल सोल्यूशन हो सकता है हमारे पास, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करेगा? डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी बहुत डाइवर्स एंड बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है कुछ बच्चों के ऊपर, दैट कैन ऑल्सो लीड टू देम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल। यहाँ पे हमें एम्फोसिस करना चाहिए कि कैसे रेमेडियल टीचिंग पे हम फोकस करें, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ाएं, मोर अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी ब्रिंग इन, रिगरस ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की भी, बेटर अप्रेजल सिस्टम होने चाहिए उनके लिए। ये कुछ डिफरेंट चीजें जो हम स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी भी हम फॉलो करते हैं उसमें हम डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं और इंक्लूसिव बनाने की बात करते हैं। हो सकता है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लगा के कहीं ना कहीं जो बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं इन दी स्कूल्स, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाएं। तो एक चैलेंज भी उठता है कि इट कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली लीड टू इंक्रीज इन ड्रॉप आउट रेट्स। सो ये कुछ रीजन बोल सकते हैं हम कि नो डिटेंशन पॉलिसी को रोल बैक किया गया। लर्निंग आउटकम को बैलेंस करने की जरूरत है इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन के साथ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देन कृष्णा हसरत मोहानी was born in Uttar Pradesh। He attended मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको अभी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोलते हैं।
सो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, हसरत मोहानी का, चुपके चुपके रात दिन, ऐसे पेट्रियोटिक पॉवर्टी भी उन्होंने लिखे हैं, गजल लिखे हैं, अनदर रेवोल्यूशनरी स्लोगन जैसे इनकलाब जिंदाबाद, वो भी उन्होंने हमें दिया है, जिसका फ्रीडम मूवमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एंड अभी तक एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के इंटेग्रिटी। इसके साथ साथ he also actively participated in Indian National Congress. He also advocated for पूर्ण स्वराज, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, even before the Congress officially adopted the resolution. तो उसके पहले से ही वो बेसिकली एडवोकेट करें फॉर पूर्ण स्वराज एंड also he opposed British rule and spent years in prison for his revolutionary activities. So unique devotion रहा है उनका to Krishna. He was a devout Muslim, was ardent Krishna devotee also. He participated in Janmashtami. He also celebrated in Mathura and Vrindavan. So he blended the spiritual beliefs also with revolutionary fervor. So ये दिखाता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरफ भी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। यूनिक फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंस दिखाते हैं ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड कैसे रिलीजियस और पेट्रियोटिक आइडेंटिटीज को आप ब्लेंड कर सकते हैं। सो उनका एक लेगेसी है रेवोल्यूशनरी जील का, ऑल्सो लिटरेरी एक्सीलेंस का एंड रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट फेथ्स। So we have completed for today. Thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.